السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے ترسول کھنڈ کی داسی، ایپیسوڈ نمبر 8۔ اگر وہ اندر ہے تو باہر سے دروازہ کس نے بند کیا ہے، میں سوچ رہا تھا، اور عارف اس مکان میں چاروں طرف نظریں دوڑا رہا تھا۔ بڑی گندی جگہ تھی، ایک طرف نالی بنی ہوئی تھی جن کے کنارے کنارے سیاہ رنگ کی کیچڑ پھیلی ہوئی تھی، ایک طرف سیاہ رنگ کی کوئی چیز کافی تعداد میں پڑی ہوئی تھی جن کے بارے میں بعد میں معلوم ہوا کہ جمع ہوا پرانا خون ہے۔ مچھلیوں کے چھوٹے بڑے سر چاروں طرف بکھرے پڑے تھے، اور اس کے علاوہ دوسرے آبی جانوروں کے ڈھانچے بھی جگہ جگہ بکھرے پڑے تھے۔ بہت سے جانوروں کے جسم میں ابھی گوشت لگا ہوا تھا، اور اس گوشت میں کیڑے رینگ رہے تھے، اور یہ سلاند انہی تمام چیزوں کی تھی۔ اس وحشت خیز ماحول میں ہم تو کیا اچھوں کا پانی پیتا ہو جاتا۔ چنانچہ میں نے وحشت زدہ انداز میں کہا، دروازہ کھلواؤ، دروازہ کس نے بند کیا ہے؟ کیوں، کیا بات ہے؟ ہمارے میزبان کی پھٹی پھٹی آواز گونجی۔ اس جگہ ہم نہیں رہ سکتے، دروازہ کس نے بند کر دیا؟ میں نے بند کیا ہے، اور تمہیں اسی جگہ رہنا ہوگا، میزبان نے جواب دیا۔ کیا بکواس ہے، ہمیں یہاں کون رکھ سکتا ہے؟ تم کون ہو؟ عارف نے جھلائے ہوئے انداز میں پوچھا، اور اس کے قریب پہنچ گیا۔ ہمارا میزبان مسکراتا رہا، اور اس کے غلیظ اور پیلے دانت بے حد بھیانک نظر آ رہے تھے۔ میں بھی جلدی سے ان دونوں کے قریب پہنچ گیا۔ میزبان عارف کی بجائے مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، میں گرو دیو باسودیو کا داس ہوں شارک بابو۔ کیا تم سمندر پار کا سفر کر کے گرو دیو سے مکتی حاصل کر سکتے ہو؟ یہ تمہاری بھول ہے۔ گرو دیو کی شکتی مہان ہے، تم سنسار کی دوسری اور بھی ان کے پنجے سے نہیں بیٹھ سکتے۔ تم اتنا سفر کر چکے ہو، پر گرو دیو کی آنکھ کے ایک اشارے سے تارا گھر پہنچ سکتے ہو۔ اب بھی سمے ہے، گرو دیو کو ابھی تمہارے اوپر غصہ نہیں آیا ہے، اور ان کی بات مان لو اور سنسار کی گھٹناؤں سے بچ جاؤ۔ ذلیل، تو اسی لیے ہمیں نکال کر یہاں تک لایا ہے۔ وہ منحوس بوڑھا یہاں تک بھی پہنچ گیا، میں نے طیش کے عالم میں کہا، اور اس غلیظ انسان کی گردن پکڑ لی، اور میں اس کی گردن پوری قوت سے دبا رہا تھا، اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ گردن میرے ہاتھوں میں تحلیل ہو رہی ہو، اور چند سیکنڈ، صرف چند سیکنڈ، اس کے بعد گردن غائب ہو گئی، اور کندھوں اور گردن کے جوڑ سے سرخ خون ابل رہا تھا۔ میں دہشت زدہ انداز میں پیچھے ہٹ گیا، میری آستینیں خون سے سرخ ہو گئی تھی، اور عارف وہ سکتے کے عالم میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اسی وقت بغیر سر کے شیطان کا ایک بھیانک قہقہ سنائی دیا، اور اس کی آواز گونجی، ٹھیک ہے شارک بابو، اب باقی جیون یہی بتاؤ۔ بھوک اور بدبو تمہارا بھاگ ہے۔ ہاں، اگر تمہارے من میں کبھی مہاراج کی بات مان لینے کا خیال آ جائے تو 3 بار گرو دیو کا نام لے کر دھرتی چھو کر ماتھے کو لگا لینا۔ گرو دیو تمہارے پاس آ جائیں گے اور تمہاری سہایتا کریں گے۔ میں جا رہا ہوں، تم سے ملتا رہوں گا۔ اچانک اس کا جسم ہلنے لگا، اور پھر وہ بے سر کا جسم زمین پر گر پڑا۔ زمین پر چند ساعت تڑپنے کے بعد اس نے ایک اور بدہیبت شکل اختیار کر لی۔ وہ انگلی کے برابر موٹا اور ہاتھ بھر لمبا ایک کیڑا بن گیا، اور جس کے جسم پر لمبے لمبے بال تھے، اور پھر وہ رینگتا ہوا نالی میں اتر گیا۔ چند لمحات کے بعد وہ نالی سے بھی باہر تھا۔ عارف اب بھی پتھر کے بت کی طرح ساکت و جامد کھڑا تھا۔ میں نے اسے جھنجھوڑا، اور وہ اچھل پڑا، اور اس کا سارا جسم پسینے سے شلابور تھا، اور آنکھوں سے دہشت جھانک رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے بھائی جان، یہ سب کیا ہے؟ وہ عارف بری طرح ہانپنے لگا۔ ابھی تک میں نے کسی اور کو اپنی بد نصیبی کی تفصیل نہیں بتائی تھی۔ جنہیں کچھ معلوم تھا وہ اس دنیا میں نہیں تھے۔ اب عارف کے سامنے کچھ واقعات پیش آ گئے تھے، اس سلسلے میں خاموش رہنا اب مناسب نہیں تھا۔ دوسرے، عارف سوالیہ انداز میں میری شکل دیکھ رہا تھا۔
चुनाचा मैंने एक सर्द आह भरकर कहा, ये मेरी बदनसीबी की दास्तान है आरफ। ये हमारी मुसीबत का किस्सा है और ये मुसीबत उस मनहूस दिन से शुरू हुई जब मैं तारागढ़ की ढलानों पर कहानी की तलाश में सरगर्दा था। मैंने आरफ को शुरू से आखिर तक तफसील बता दी और आरफ की आंखों से आंसू बहने लगे। भाईजान, ये तो सिर्फ इत्तफाकी हालात नहीं हैं, बल्कि एक मनहूस इंसान के इंतकाम ने हमारे भरे पूरे घर को उजाड़ दिया है। कहाँ है वो जलील, और मुझे उसका पता बताइए जो हमारी मुसीबतों का जिम्मेदार है। वो गंदी कुव्वतों का मालिक है आरफ, ये उसी का हरकारा था। कई बार उसने मुझे इसकी बात मान लेने की तरगीब दी है, लेकिन वो मस्जिद में क्यों जाना चाहता है भाईजान, ये क्या राज है? मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन इतना जानता हूँ कि गंदी कुव्वतों का मालिक वो इंसान जिसके नुमाइंदे यहाँ तक पहुँच सकते हैं, जो उसकी ज़बरदस्त कुव्वत का प्रचार करते फिरते हैं, अपने कदमों से चलकर मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकता, और अगर वो ऐसा कर सकता तो मेरे पीछे ना पड़ता। अजीब राज है, अगर हमारी इस हालत के ज़िम्मेदार वही शख्स है तो फिर हम उसकी कुव्वतों से कैसे लड़ सकेंगे, उन कुव्वतों के सहारे जो उसके बस में नहीं। मैंने उस रोज़ भी एक ख्वाब देखा था जिस दिन तुम कार्ड से मिलने गए थे और मुझे वालदा और दूसरे लोगों ने उसकी बात मानने से मना किया था। ठीक है, देखते हैं कि खुदा ने शैतानी कुव्वतों को किस कदर आज़ादी दी है। हम उसके नाम के साथ उससे मुकाबला करेंगे, आरफ ने हिम्मत से कहा, और हालात का मुकाबला करने का फ़ैसला कर लिया। हमने कुव्वते इरादी से काम लेकर उस खतरनाक बदबू का एहसास ज़हन से निकालने की कोशिश की और उसमें किसी हद तक कामयाब भी हो गए। ज़मीन इतनी गंदी थी कि उस पर पाँव रखने को भी दिल ना मानता था, लेकिन अब तो सब कुछ बर्दाश्त करना ही था। दूसरी बात यह थी कि हम भूखे प्यासे थे। अभी तक दोनों ही बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन ज़्यादा अरसे तक ऐसा ना कर सकते थे। बहर सूरत कुछ भी हो, आरफ दरवाजे के करीब पहुंच गया। दाखिल होते वक्त उसके बारे में गौर नहीं किया था, लेकिन अब अंदाज़ा हुआ कि बेहद मोटी और मजबूत लकड़ी का बना हुआ था। इंसानी कुव्वत बगैर किसी औजार के उसे खोलने पर कादर ना थी। वक्त गुजरता रहा, बाहर निकलने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई थी। हम ज़मीन पर बैठ गए। आरफ के चेहरे से नकाहत टपकने लगी, लेकिन मैं भी मजबूर था, क्या कर सकता था। मिट्टी के तेल का चिराग बदस्तूर रोशन था। हम दोनों खामोश बैठे रहे और न जाने कब हमें बैठे बैठे नींद आ गई। नींद भी काफ़ी तवील थी, शायद बेहोशी की शक्ल इख्तियार कर गई थी और हम उस वक़्त बेहोश में ना आते, लेकिन दरवाज़ा खुलने की आवाज़ इस कदर ज़ोरदार थी कि हमारी आंख एक साथ खुल गई। दरवाज़ा पूरी कुव्वत से खुला था और रोशनी अंदर घुस आई थी। सूरज की तेज़ रोशनी में हमने एक बेहानक मंजर देखा। वही करी शक्ल बूढ़ा था जो बाद में सर कटा नुमाइंदा साबित हुआ था, और उसके चेहरे पर बदहवासी के आसार थे और जिस्म के कुछ हिस्सों से खून बह रहा था, और उसके जिस्म से स्याह रंग का एक मोटा सांप लिपटा हुआ था जो बार बार उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर डस रहा था, और बूढ़ा बुरी तरह चीख रहा था, अब नहीं करूँगा, सीधा साहब, मर जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा। सैयद साहब, भूल हो गई, क्षमा कर दो सैयद साहब, अब भूल कर भी इस तरफ नहीं जाऊँगा। और उसके साथ ही वो सांप को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सांप की कुव्वत के आगे उसकी कुव्वत बेकार थी। सांप उसके जिस्म को भी जकड़े हुए था और शायद उसे भींच रहा था। बूढ़ा नीचे गिर पड़ा और सांप ने आखिरी बार उसकी पेशानी पर डसा और फिर उसके जिस्म के गिर्द से बल खोलने लगा, और उसके बाद वो रेंगता हुआ दरवाजे से बाहर निकल गया। बूढ़ा हाथ पांव मारता हुआ आहिस्ता आहिस्ता उसका सर गायब होने लगा और स्याह जिस्म नमूदार होने लगा, और चंद लम्हात के बाद वो पुर इसरार सर कटे की शक्ल में आ गया। लेकिन अब उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून बह रहा था, और उसके बाद उन्होंने एक और लर्जा खेज मंजर देखा। सरकटे का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता हिल कर बेडौर होता जा रहा था, जैसे कोई चीज़ पिघल रही हो और सांचे से निकल जाना चाहती हो, और फिर उसका गोश्त गाढ़े स्याह खून की शक्ल में चारों तरफ बहने लगा। स्याह बदबूदार खून जो चारों तरफ फैल गया था, और थोड़ी देर के बाद ज़मीन पर गाढ़े स्याल के अलावा कुछ नहीं था। हम दोनों उस खौफनाक और पुर इसरार मंदिर में ऐसे गुम थे कि खुले दरवाजे की तरफ भी ख्याल ना कर सके। सांप के चले जाने के बाद भी हम कई मिनट उसी तरह खड़े रहे, और फिर आरफ को ही ख्याल आया
اور وہ میرا ہاتھ پکڑ کر دروازے کی طرف دوڑا۔ تب مجھے بھی احساس ہوا اور ہم دونوں اس گندی قید سے نکل آئے۔ نہ جانے کتنی دیر ہم وہاں رہے تھے، لیکن ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے سال ہا سال کے بعد کسی بہت بڑی مصیبت سے نجات پائی ہو۔ باہر آ کر ہم نے کھلی فضا میں گہری گہری سانسیں لی۔ بھوک کی وجہ سے برا حال تھا۔ تھوڑی دور پر کچور اور تاڑ کے درخت موجود تھے۔ تاڑ کے درخت کے نیچے کچھ پھل پڑے ہوئے تھے اور میں نے دوڑ کر انہیں اٹھا لیا اور پھر درخت میں مار کر ہم نے انہیں توڑا اور ان کا پانی پینے لگے۔ عارف نے بھی ایسا ہی کیا اور پانی پینے کے بعد قدرے سکون ہوا اور عارف کہنے لگا، میں کھجور کے درخت پر چڑھ رہا ہوں بھائی جان، آپ نیچے رہیے، کھجور ایک مکمل غذا ہوتی ہے۔ درخت کافی اونچا ہے عارف، میں نے تشویش سے کہا۔ آپ فکر نہ کریں، عارف نے جواب دیا اور پھر وہ درخت پر چڑھنے لگا۔ عارف کی پھرتی قابل اعتماد تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت پر چڑھ گیا اور پھر اس نے اپنے جسم کو سنبھال کر کھجوریں توڑنا شروع کی اور نیچے پھینکنے لگا۔ گو مجھے سخت بھوک لگ رہی تھی، لیکن میرا بھائی بھوکا تھا اور خطرے سے دو چار تھا، اس لیے میں کیسے کھا سکتا تھا۔ عارف کے نیچے آنے کے بعد ہم نے کھجوریں کھائیں اور ایک بار پھر تاڑ کا پانی پی کر سیر ہو گئے اور اس منحوس مکان سے نکل کر ہم ایک ٹیلے کی طرف بڑھے تاکہ آبادی تلاش کریں۔ درخت کے پر چڑھنے کے بعد اس کا خیال ہی نہ رہا، ورنہ اس بلندی سے جزیرے کے بارے میں معلومات ہونا آسان تھا۔ عارف نے کہا، بھوک ایسی ہی چیز ہے عارف، خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس اذیت ناک قید سے نجات دلائی۔ آپ نے سرکٹے کے الفاظ سنے تھے بھائی جان؟ ہاں، وہ شام کو سید صاحب کہہ رہا تھا، وہ یقیناً کوئی بزرگ تھے عارف، اور وہ گندی روح ان بزرگ کے قریب پہنچ گئی ہوگی، اور اس سے تو اسی بات کا اندازہ ہوتا ہے کیونکہ خیر و شر کی قوتوں میں شر کتنا کمزور ہوتا ہے۔ اس وقت اس کا گرو دیو بھی اس کی کوئی مدد نہیں کر سکا۔ کیا ہم ان بزرگ سے مدد نہیں مانگ سکتے بھائی جان؟ وہ ہمارے حال سے بے خبر نہ ہوں گے، ممکن ہے کہ اس میں بھی کوئی مصلحت ہو۔ میں نے کہا اور ہم ٹیلے کی چوٹی تک پہنچ گئے۔ خاصی بلند چوٹی تھی اور اس پر سے بھی پورا جزیرہ نظر آتا تھا۔ ہمیں یہ دیکھ کر شدید حیرت ہوئی کہ وہ بہت چھوٹا اور بالکل ویران جزیرہ تھا، گویا یہاں اس منحوس سرکٹے کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ پھر میری نگاہ سمندر کے کنارے کنارے گھومتی ہوئی اس کشتی پر پہنچ گئی جو ہمیں یہاں تک لائی تھی۔ کشتی اسی طرح پانی پر موجود تھی۔ میں نے عارف کا شانہ دبایا اور اسے اس طرف متوجہ کیا اور عارف اچھل پڑا۔ اوہو، یہ کشتی اس جزیرے سے نکلنے میں مدد کرے گی بھائی جان، وہ خوشی سے بولا، اور میں نے بادبان سیدھے کیے اور کشتی کو ہوا کے رخ پر چھوڑ دیا۔ عارف نے اسے دھکیل کر گہرے پانی میں ڈالا اور کود کر کشتی پر سوار ہو گیا۔ ایک بار پھر ہم سمندر کے رحم و کرم پر تھے۔ سب سے زیادہ بن فرقان کا خیال تھا، نہ جانے کم وقت کہاں ہو اور شاہدہ کا کیا حال ہو۔ بہن کا خیال آتے ہی ہم رنجیدہ ہو گئے اور نہ جانے کب تک اس کے بارے میں گفتگو کرتے رہے۔ صبح کو سورج کافی نکل آیا تھا جب میری آنکھ کھلی۔ عارف شاید میرا انتظار ہی کر رہا تھا۔ میری آنکھ کھلتے ہی بولا، بھائی جان، ہم ایک جزیرے کے قریب پہنچ رہے ہیں، دیکھیے کہ دور سے وہ جزیرہ نظر آ رہا ہے۔ میری آنکھوں کا غبار ہوا ہوا ہو گیا اور میں جلدی سے اٹھ کر جزیرے کو دیکھنے لگا۔ دور سے بھورے رنگ کے پہاڑ نظر آ رہے تھے۔ کشتی جزیرے کے کافی قریب پہنچ گئی۔ ہم دونوں سب کچھ بھول کر جزیرے کو دیکھ رہے تھے۔ جزیرہ اب صاف نظر آ رہا تھا اور خوشی کی بات یہ تھی کہ وہاں آبادی تھی۔ یہاں سے بن فرقان کے بارے میں معلومات ہو سکتی تھی اور میں دبئی بھی جا سکتا تھا۔ ہم نے کشتی کا رخ اس طرف موڑ دیا جہاں دوسری بادبانی کشتیاں اور لانچیں کھڑی تھی۔ ہم نے اپنی کشتی بھی انہی لانچوں اور کشتیوں کے ساتھ کھڑی کر دی اور نیچے اتر آئے۔ ابھی ہم چند ہی قدم آگے بڑھے تھے کہ کئی افراد ہماری طرف لپکے اور ہمارے قریب پہنچ کر کچھ کہنے لگے۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ مختلف قسم کی عربی بول رہے ہیں، لیکن ہم عربی نہیں سمجھ سکتے تھے۔ اور پھر ان میں سے ایک آگے بڑھ آیا اور انگریزی میں بولا، کیا آپ انگریزی بول سکتے ہیں؟ ہاں، میں نے جلدی سے کہا اور مجھے انگریزی بولتا دیکھ کر بھی بہت سے لوگ آگے بڑھ آئے۔ سرائے اسمیمہ میں قیام کریں گے جناب، بہت اعلیٰ ماحول ہے۔ سرائے استینی بہت حسین جگہ ہے۔ مس عزیزہ برہانی کا رقص آپ کے دل کو مو لے گا۔ میں آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق لڑکی مہیا کر سکتا ہوں۔ میرے پاس دنیا کے 22 ملکوں کی حسین ترین لڑکیاں ہیں۔
गर्द बेशुमार जुमले हमारे कानों में पड़े और हम दोनों मुंह फाड़े उन लोगों को देख रहे थे। फिर बमुश्किल हमने उनसे निजात हासिल की और एक आदमी को नुमाइंदा मुंतखब कर लिया। ये भी मकामी बाशिंदा था और खासी रवानी से अंग्रेज़ी बोल लेता था। जब हमने उसका इंतखाब कर लिया तो दूसरे लोगों ने फौरन हमारा पीछा छोड़ दिया। उस शख्स का नाम हारून अफंदी था और वो हमें पैदल ही काफ़ी दूर लाया। जजीरे का रकबा 3-4 मील से ज़्यादा नहीं था, इसलिए यहाँ सवारी की ना तो ज़रूरत थी और ना उसका कोई बंदोबस्त था। जिस जगह वो हमें लाया दर हकीकत बहुत उम्दा थी। यहाँ अंग्रेज़ी और अरबी में खजूर की झोंपड़ी लिखा हुआ था और उसे खजूर के दरख्त के मुख्तलिफ हिस्सों से ही बनाया गया और उसके अलावा शम्स इस्तेमाल की गई थी। जजीरे की हवा खुश्क थी, लेकिन खस के बने हुए कमरों को पानी से तर रखने का ख़ास तौर से इंतज़ाम किया गया था, जिसकी वजह से दूर तक खुशबू और ठंडक थी। हमारे नुमाइंदे ने हमारे लिए एक बड़े कमरे का बंदोबस्त किया जिसमें 2 आला दर्जे के बिस्तर लगाए गए। हम अभी तक नहीं समझ पाए थे कि यह जजीरा किस किस्म का है। इतना तो ज़रूर मालूम हो गया था कि कोई आज़ाद जजीरा है जहां हर रंग और हर नस्ल के लोग आते रहते थे और किसी के यहाँ आने पर रोक टोक नहीं है। लेकिन ये किसके ज़ैर नगीन है, लोग यहाँ क्यों आते हैं और उसके बारे में हमें अभी तक कोई मालूमात नहीं थी। हम अपने नुमाइंदे से भी ये सवाल करने में हचकिचा रहे थे, क्योंकि मुमकिन है कि यहाँ कुछ मखसूस लोग किसी मखसूस सिलसिले में आते हों और हमें अजनबी महसूस करके दूसरे लोग हमारी तरफ से मुश्तबे हो जाएं। चुनांचा हमने अपनी तरफ से इस सिलसिले में कुछ ना कहा और हमारा नुमाइंदा 2 घंटे के बाद हमसे मुलाकात करने का वादा करके यहाँ से चला गया। खास के बने हुए कमरे के आरामदाह बिस्तरों पर बैठे हुए हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। आरफ पुरख्याल नज़रों से मेरी शक्ल देख रहा था और फिर उसने कमरे के दीवार से कान लगाकर दूसरी तरफ की आवाज़ें सुनी और उठकर मेरे पास आ गया। हमें आहिस्ता आवाज़ में बात करनी चाहिए भाईजान, क्योंकि उधर की आवाज़ दूसरी सिमत साफ सुनी जा सकती है। मैंने गर्दन हिला दी तो आरफ बोला, आपने साल पर उन नुमाइंदों की गुफ्तगू सुनी। एक नुमाइंदे ने रक्स के बारे में हमें तरगीब दी थी और दूसरे ने कहा था कि उसके पास दुनिया के 22 मुल्कों की लड़कियां मौजूद हैं। उन बातों से हम इस जजीरे की हैसियत तो समझ सकते हैं, गोया यहाँ खुले आम अय्याशी होती है। ज़ाहिर है कि जो लोग यहाँ आते होंगे वो अच्छे लोग ना होंगे, चुनांचा हमें यहाँ बहुत मोहतात होकर रहना पड़ेगा। मैं इस सिलसिले में एक बात और सोच रहा हूँ। क्या? मैंने आहिस्ता से कहा। ये हकीकत है कि इन मामलात में आरफ का जहन मुझसे तेज़ था। वो हालात और मौके की नज़ाकत समझने में मलका रखता था। ये तो तयशुदा बात है कि यह जजीरा भी इसी इलाके में है जिसकी हमें तलाश थी और उसका अंदाज़ा यहाँ के मकामी लोगों से हो जाता है। चुनांचा मुमकिन है कि यहाँ से बिन फुरकान का पता मिल जाए। ज़ाहिर है कि पेशावर लड़कियाँ भी कहीं ना कहीं से ज़रूर आती होंगी। ओ हाँ, मैं चौंक पड़ा, ये तो दुरुस्त है, लेकिन उसके लिए हमें बहुत मोहतात होकर काम करना पड़ेगा। आइए तैयारियां करके बाहर निकलते हैं। जजीरे का माहौल देखने के बाद ही इस सिलसिले में फ़ैसला करेंगे और उसके अलावा हमें यहाँ की करेंसी की भी ज़रूरत पड़ेगी। वो कहाँ से हासिल करोगे? मैंने बेसाख्ता पूछा और आरफ के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। इस सिलसिले में फ़िक्र ना करें भाईजान, दुनिया के हर खित्ते हर इलाके में मेरे बैंक मौजूद हैं, चलते फिरते बैंक जो बाआसानी मेरी ज़रूरियात पूरी कर देते हैं। मैं खामोश हो गया। हालात ही ऐसे पैदा हो गए थे कि अब आरफ तकल्लुफ़ नहीं करता था और उसकी तमाम कमज़ोरियाँ मेरे सामने थीं और मेरी उसके सामने। हम दोनों ऐसे अताब का शिकार थे जिसका सद्देबाब हमारे हाथ में नहीं था। चुनांचा तकलीफ़ की दीवारें खुद ब खुद गिर गई थी। 1 घंटे तक हम आराम करते रहे। कश्ती के तकलीफ़दा सफ़र ने हमें थका दिया था, लेकिन थकन का एहसास हमारे लिए सिमे कातल था। जिस वक़्त हम थकन का एहसास कर लेते हमारी जद्दोजहद ख़त्म हो जाती और उस लिबास के अलावा हमारे पास कुछ ना था जो हम पहने हुए थे। ये लिबास भी काफ़ी ख़राब हो गया था, लेकिन मजबूरी थी। बहरहाल हमने मुंह हाथ धो वगैरह धोया और फिर बाहर निकल आए। होटल के मालिक को हमने कुछ नहीं दिया, लेकिन ना जाने क्यों उसने हमारे ऊपर एतमाद कर लिया था। ज़ाहिर है कि हमारे पास सामान वगैरह भी नहीं था जो बेतौर ज़मानत वहाँ रहता। बहरहाल मुमकिन है कि यहाँ ऐसे लोग ना आते हों जो किसी का कुछ लेकर भाग जाते हों। उसके अलावा इस छोटे से जजीरे से
किसी की नज़रों से बचकर फरार होना भी नामुमकिन था। हम बाजार निकल आए। जजीरे के असल बाजार देखकर हम हैरान रह गए। यहाँ दुनिया की आला से आला चीज़ें नहायत सस्ते दामों फरोख्त हो रही थी। ज़ाहिर है कि सब स्मगलिंग का सामान था। हम और आरफ चलते रहे। बाज़ारों में खासा रश था। आरफ एक दुकान पर रुक गया और यहाँ रेडीमेड लिबास मौजूद थे, एक से आला दर्जे का लिबास। हम चटाइयों से बनी हुई उस दुकान में दाखिल हो गए और आरफ यहाँ मेरे और अपने साइज़ के लिबास देखने लगा और फिर उसने 2-3 जोड़े मेरे लिए पसंद कर लिए और 3 अपने लिए और दुकानदार से उन्हें पैक करने के लिए कहा। मैं हैरत से आरफ की शक्ल देखने लगा क्योंकि हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी। मेरे नज़दीक अभी तक आरफ ने कोई काम भी नहीं दिखाया था, इसलिए वो अदायगी कहाँ से करेगा। लेकिन उस वक़्त मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही जब दुकानदार के बिल देने पर आरफ ने अंदरूनी जेब से एक आला किस्म का पर्स निकाला और उससे चंद पाउंड निकालकर दुकानदार के सामने डाल दिए। दुकानदार ने कपड़ों की रकम काट कर बकिया रकम वापस कर दी और हम बंडल बगल में दबाकर दुकान से निकल आए। बटवा कहाँ से आया? मैंने लोगों से अलग होते ही आरफ से पूछा। मैं अर्ज़ कर चुका हूँ भाईजान, मेरे बैंक दुनिया के हर हिस्से में फैले हुए हैं। आइए किसी मुनासिब जगह चलकर हम लिबास तब्दील कर लें और हम किसी सुनसान सी जगह की तलाश में निकल पड़े। आखिर एक जगह पहुंचकर हमने लिबास तब्दील किए, पुराने लिबास वहीं छोड़ दिए और बाकी खरीदे हुए लिबास हाथ में दबाए वहां से आगे बढ़ आए। अभी तक हमने सिर्फ एक बाज़ार देखा था, जबकि वहां चारों तरफ बाज़ार ही बाज़ार थे। नया लिबास बहुत शानदार था। बहुत से लोगों ने हमें तहसीन अमीज़ नज़रों से देखा, लेकिन हम किसी तासर से बेनियाद आगे बढ़ते रहे। फिर एक जगह से कुछ साज़ों की आवाज़ें आ रही थी। हम उस तरफ चल पड़े। एक शामियाना लगा हुआ था जिसके नीचे रक्स हो रहा था। हम भी दूसरे तमाशाइयों की तरह वहाँ खड़े हो गए। एक तरफ 6-7 लड़कियाँ और मुख्तलिफ लिबासों में बैठी हुई थी और उनके चेहरे उदास थे, आंखों से गम झांक रहा था। एक लड़की रक्स कर रही थी, लेकिन उसकी हैसियत मुख्तलिफ थी। मैंने की नज़रों से आरफ की तरफ देखा और आरफ सरगोशी के अंदाज में बोला, अगर मेरा ख्याल गलत नहीं भाईजान, तो इन लड़कियों को फ़रोख्त करने के लिए यहाँ लाया गया है। मैं भी यही सोच रहा हूँ। गोया बिन फुरकान का पता यहाँ बखूबी चल सकता है। आरफ की आंखों में चमक पैदा हो गई थी और उस वक़्त रखत ख़त्म हो गया और एक मोटे ताज़े जिलादनुमा आदमी ने बैठी हुई लड़कियों से एक का हाथ पकड़ा कर उठाया और पहले उसने नहायत वहशियाना अंदाज में लड़की के जिस्म के नस्वानी हिस्सों की नुमाइश की और उसके बाद उसका नीलाम शुरू हो गया। बड़ा इबरतनाक मंजर था। हमारा दिल डूबने लगा। क्या मजलूम शहादा के भी यही हशर हो चुका है? मैं और आरफ एक ही अंदाज में सोच रहे थे, क्योंकि मैंने आरफ की आंखों में खून की चादर देखी और फिर वो जज्बात से कपकपाती आवाज़ में बोला, भाईजान, अगर शहादा के साथ भी यही सलूक हो चुका है तो खुदा की कसम। जज्बाती मत बनो आरफ, इन भेड़ियों से तुम और क्या तवक्का कर सकते हो? उनका काम यही है। हमें होशो हवास से काम लेकर कुछ करना होगा। तुम्हारे पास कितनी रकम है? काफ़ी है। क्यों? हम इनमें से एक आध लड़के खरीदेंगे और उनमें से हर एक शहादा है। अगर उनके भाई भी होंगे तो हमारी तरह उनकी तलाश में सरगर्दा होंगे। मैंने कहा और मेरी आवाज़ में रिक्कत पैदा हो गई थी। आप यहाँ रुकिए भाईजान, आरफ ने कहा और एक तरफ खिसक गया। मैंने ख़ास तौर से उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, क्योंकि मैं समझ गया था कि वो क्या करने गया है और थोड़ी देर के बाद वो वापस आ गया। लड़की की बोली लग रही थी और वो नडाल सी खड़ी थी। हम दोनों खामोश खड़े रहे। जब बोली 80 पाउंड तक पहुंच गई तो उसके बाद कोई आगे ना बढ़ा। नीलाम करने वाला कई मिनट तक कोशिश करता रहा और जब बोली आगे ना बढ़ी तो उसने हथौड़ी उठाई और वो आखिरी ज़रब लगाने ही पा रहा था कि आरफ ने $85 कह दिए। तमाम लोग चौंक कर आरफ की तरफ देखने लगे और नीलाम करने वाले की बाँछें खिल उठी। आखिरी बोली आरफ के नाम छूट गई और उसने कीमत अदा कर दी। फ़ौरन ही दूसरी लड़की की बोली शुरू हो गई। आरफ के नाम छूटने वाली लड़की हमारे पास आकर खड़ी हुई थी। आरफ आहिस्ता से मेरे पास आ खड़ा हुआ और उसने नोटों की एक मोटी गड्डी मेरे जेब में डालते हुए कहा, इस बार बोली आप छुड़ाएंगे भाईजान। ये दूसरी लड़की मैंने 100 पाउंड में खरीदी और तीसरी लड़की की बोली होने लगी और इस तरह 2 लड़कियां मैंने और 2 आरफ ने खरीदी। वहां खड़े हुए दलाल ख़ास तौर से हमारी तरफ मतवजा हो गए और हमारे करीब पहुंचकर काना फूसी करने लगे।
यहाँ एक ही अड्डा नहीं है जनाब, और इससे कहें कि अच्छा माल आपको पेश किया जाएगा, बराह करम यहाँ से चलें। हमने 4 लड़कियाँ खरीदी थी, ज़ाहिर है कि यहाँ ना जाने कितनी लड़कियाँ होंगी, किसे किसे खरीदेंगे और इनका इंतज़ाम कैसे करेंगे। हम तो खुद ही परेशान हाल थे, चुनाचा लड़कियों को लेकर हम यहाँ से चल पड़े। चारों लड़कियाँ हिंदुस्तानी थी और उर्दू बोलती थीं। वो खामोश हमारे साथ चल रही थी और उनकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर ज़बत के तूफान। हम उनकी तरफ देख भी नहीं रहे थे, दिलार बदस्तूर हमारे पीछे लगे हुए थे। आखिर आरफ ने मुझसे कहा, आप इन लोगों को लेकर चलिए भाईजान, मैं अभी आता हूँ। मैंने गर्दन हिलाई और लड़कियों के साथ होटल की तरफ चल दिया। होटल के मालिक से मैंने एक और बड़ा कमरा हासिल किया और लड़कियों को उसके कमरे में भेजकर खुद अपने कमरे में आ गया। मैं उन बदनसीबों की हालत पर गौर कर रहा था और उस कारोबार के बारे में सोच रहा था। ना जाने कितना वक्त गुजर गया और फिर आरफ आ गया। उसके हाथों में कई बंडल थे जिन्हें उसने मसहरी पर डाल दिया और उसके अंदाज से थकन नुमाया थी। उन बंडलों में क्या है, मैंने पूछा। उन लड़कियों के लिए कपड़े वगैरह हैं, आरफ ने जवाब दिया और नढाल सा मसहरी पर गिर पड़ा। क्या बात है आरफ। मैं आरफ की गैर मामूली कैफियत देखकर अपनी जगह से उठकर उसके करीब पहुंच गया और आरफ की पलकों पर आंसू लर्ज रहे थे और मैं उसके आंसू देखकर बेचैन हो गया और बेकरारी से उससे अहवाल दरियाफ्त करने लगा। मेरे दिल में न जाने कितने वसवसे सर उबार रहे थे। मैंने बिन फुरकान के बारे में उन दिलालों से मालूमात हासिल की थी भाईजान, आरफ अफसुदा लहजे में बोला। फिर क्या हुआ? उसके माल फरोख्त करने की भी यही जगह है। ओहो, तफसील बताओ आरफ, खुदा के लिए जल्दी बताओ। 1 हफ्ता कबल वो अपनी लाई हुई लड़कियां फरोख्त करके जा चुका है। कहाँ? इस सिलसिले में किसी को मालूम नहीं। दलालों ने बताया है कि वह माल की तलाश में चला गया होगा। उसने जिन लड़कियों को फरोख्त किया है उनके बारे में किसी को कुछ मालूम है? इतनी मालूमात यहाँ किसी के बारे में नहीं होती। बिन फुरकान का कोई आदमी मिल सकता है। मैंने इस बारे में मालूमात हासिल की थी, लेकिन यहाँ उसका कोई आदमी नहीं हूँ। और मैंने बुझे हुए दिल से कहा। आरफ अभी जज्बाती था। मेरे ऊपर इतनी मुश्किलात पड़ी थी कि मैं बड़े से बड़ा गम सीने से लगाने का आदी हो गया था। काफ़ी देर तक मैं गर्दन झुकाए मजलूम शहदा के बारे में सोचता रहा। दीवानी लड़की की ज़रा सी लग्जश ने उसे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया था। उम्मीद की आखिरी शम्मा भी गुल हो गई थी। शाहदा फरोख्त हो चुकी थी और फरोख्त होकर कहाँ गई थी उसके बारे में कोई नहीं बता सकता था। अब हमारे पास उसे तलाश करने का कोई रास्ता नहीं था। काफ़ी देर तक हम दोनों अफसुर्दा बैठे रहे। फिर आरफ ने मुझसे सवाल किया, अब क्या करेंगे भाईजान? हमारी ज़िंदगी का कोई मसरफ नहीं है आरफ। जब तक खुदा की तरफ से मौत नहीं आएगी हम मर भी नहीं सकते। क्यों ना इसका एक नस्बुल ऐन बना लें? क्या? आरफ ने पूछा। शाहदा की तलाश, हम उसे तलाश करते रहेंगे मरते वक़्त तक। मौत आने के बाद उन झगड़ों से बेनियाज हो जाएंगे, मैंने मायूसी से कहा। लेकिन आरफ की आंखों में शमें जल उठी। बिल्कुल ठीक है भाईजान, हमें एक नए अज़म से काम करना चाहिए। ये बर्दा फरोशों का जजीरा है। बिन फुरकान या उसका कोई साथी यहाँ ज़रूर आएगा। हम यहाँ के चक्कर लगाते रहेंगे। हम दूसरी जगहों से दौलत समेटेंगे। यहाँ बड़े पैमाने पर मजलूम लड़कियों को खरीदेंगे और आज़ाद कर देंगे। मुमकिन है कि उनमें से किसी की दुआ हमारे काम आ जाए। ये सब हमारी शाहदाएँ हैं भाईजान। हम इन शाहदाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आज़ाद कराएंगे और उस वक़्त तक कि जब तक बिन फुरकान का पता ना चल जाए। उम्दा ख्याल है आरफ, मैंने बुझे दिल से कहा। आरफ का दिल रखना था, वरना मेरा दिल तो उस खबर से बुझ गया था। अरे हाँ, इन लड़कियों का क्या हाल है? उनके लिबास उन्हें दे दें और उनसे गुफ्तगू करें। ना जाने गरीब कहाँ से आई थी, आरफ ने कहा और अपनी जगह से उठ गया। हम दोनों उस कमरे में पहुंच गए जहां चारों लड़कियां उदासी से सर झुकाए बैठी थी। हमें देखकर उनकी आंखों में खौफ के तासरात उभर आए। आरफ ने कपड़ों के पैकेट उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि हम तुम्हारे लिए कपड़े लाए हैं, क्या तुम अपने भाइयों की तरफ से ये तोहफे कबूल नहीं करोगे? लड़कियों को शायद अपने कानों पर यकीन नहीं आया था। लफ्ज़ भाई उनके वहमो गुमान में भी नहीं था। एक लड़की मुस्तरबाना अंदाज में खड़ी हो गई। क्या कहा? तुमने क्या कहा? खुदा के लिए दोबारा कहो। ये तोहफे तुम हमें किस हैसियत से दे रहे हो? भाइयों की हैसियत से, और तुम हमारी बहनों की तरह से हो, सगी बहनों की तरह। क्या तुम्हें एतराज़ है? फिर से कहो, खुदा के लिए फिर से कहो। लड़की बिलक बिलक कर रो पड़ी और उसकी हिचकियाँ बंद गईं।
दूसरी लड़कियों की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। मेरी बहन, मुझे गम है कि मेरे हम जिनसों ने तुम्हारे साथ ये सलूक किया। घरों की जीनत को बाजार में सस्ती अशिया की तरह ले आए। मेरा सर तुम्हारे सामने शर्म से झुका हुआ है, आरफ ने भराए हुए लहजे में कहा। भैया, लड़की उससे लिपट गई और दूसरी लड़कियां भी उठकर हमारे गिर्द खड़ी हो गई और उनकी आंखों में उम्मीद की मुस्कुराहटें पैदा हो गई थीं। लड़की आरफ से लिपटी फूट फूट कर रो रही थी। मैं भी जज्बाती तौर पर काबू न रख सका और मैंने दोनों बाजू फैलाकर तीनों लड़कियों को उनमें समेट लिया। वो सब मेरे सीने से लिपटी हुई सिसक रही थी और मैं दर्द भरे दिल से उस मासूम जिन्स के बारे में सोच रहा था। कई मिनट तक ये रिक्कत अमीज़ मंजर जारी रहा और फिर हमने उन्हें तसल्लियाँ देकर मसहरियों पर बिठाया और उनकी आंखों में बेशुमार सवाल रक्स कर रहे थे। मैंने उन सवालों को पढ़ा और बोला, तुम लोग बिल्कुल फिक्र मत करो, हम तुम्हें किसी मुनासिब जगह ले चलेंगे और वहाँ से तुम्हारे घरों पर जाने का बंदोबस्त कर देंगे। क्या तुम अपने बारे में बताओगी? सब की कहानी एक जैसी थी। वो सब अच्छे घरानों की लड़कियाँ थीं। कुछ नादानी मिरासों से भटक गई थी। एक हिंदू लड़की जिसका नाम वसंती था, बम्बई से लाई गई थी। बम्बई का नाम सुनकर मैं चौंक पड़ा। और तुम्हें बम्बई से कब लाया गया? तकरीबन 1.5 माह हुआ है। बम्बई से मुझे दुबई ले जाया गया और फिर वहाँ से यहाँ लाया गया। कौन लाया था तुम्हें? क्या तुम उसका नाम बता सकती हो? मैंने बेचैनी से पूछा। और उस बर्दा फरोश का नाम बिन फुरकान था।